Hello everyone, I welcome you all in this lecture. In today's lecture, we are going to discuss about orthographic projection. So before going into orthographic projection, let me tell you what do you mean by a simple projection. When we say we want to project something, then what do we want to say? So simple projection. So when we say we want a projection, it is nothing but representation of image, an image on a surface. Or in other words, we also can say it is production of 2D images, two-dimensional images or image of a three-dimensional object. तो बेसिकली क्या इसका मतलब क्या है कि सिंपली हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ बॉल, और इस बॉल को हम किसी सरफेस पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी ऑब्जर्वर है या जो भी व्यूअर है जहां से आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उस व्यूअर के थ्रू नंबर ऑफ रेज इस बॉल की सरफेस से पास होंगी। एंड दीज रेज, जब ये जो रेज है, ये जब जिस भी सरफेस पे हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उस सरफेस पे जब स्ट्राइक करती हैं, तो सिंपल, वेन एवर अ लाइन स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस वी विल गेट अ पॉइंट। जब भी कोई एक लाइन किसी भी सरफेस पे इंटरसेक्ट करेगी तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। एंड जब भी हम इन दी ये सारे पॉइंट्स को व्हेन वी ज्वाइन, वी विल गेट द प्रोजेक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर this is a surface, this white color is a surface. Okay, and this is one object, this red color is an object, and here there is a viewer. Okay, now we want to project this object onto this surface. हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पर प्रोजेक्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो व्यूअर है उसकी आईज से ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से पास होती हुई प्रोजेक्टर लाइंस, और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि रेज पास होंगी। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग हर पॉइंट से हम एक आईज के थ्रू रेज पास करा रहे हैं। एंड दीज रेज इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, दीज रेज आर कॉल्ड प्रोजेक्टर्स। ओके, और जो ये रेज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही, आई हैव ड्रॉन ओनली 4 रेज फॉर 4 कॉर्नर्स, देयर विल बी अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। फॉर एग्जांपल, एक रेज ये भी होगी कोई समथिंग, सिमिलरली there will be some this type of rays, so there will be infinite number of rays. Okay, I have shown only some rays for the clarity. Okay, now जब भी कोई rays इस object से पास होके जिस surface पर strike कर रही है, जहां पर strike कर रही है वहां पर there we will get a point. So this is a point, this is a point, similarly this is a point, this is a point. So we will get, with the help of infinite number of rays, we will get infinite number of points. और जब भी हम इन infinite number of points को when we join, so we will get the projection of that object on the plane. So this is the basic procedure how we get a projection of any object. Okay, now this viewer can be anywhere. For example, in this case we have taken viewer at this location. Let us say another case viewer can be at this point. Now what will happen, from this point number of rays, sorry, from this point number of rays will pass at different corners of the object, and it will strike again, these will strike on the plane. Okay, so based on the position of the viewer and relative position of the object and viewer and the surface, we will get different type of projection of the same object.
ओके, ऑब्वियसली जब व्यूअर यहाँ पर है तो जो ये प्रोजेक्शन मिला है मुझे और तो दूसरा प्रोजेक्शन मिलेगा जब व्यूअर की पोजीशन चेंज हो गई, these two position will not be same. Okay, so these projection will be different with respect to the relative position of the surface, object and viewer. Okay, so this is the basic overall idea of the projection. For example, जब हम लोग शेडो की बात करते हैं, our shadow. ओके, बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी पर्सन है, उसकी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से रेज, लाइट रेज पास हो रही है. ओके, एंड दीज लाइट रेज आर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस. ये सरफेस क्या हो सकता है, आपकी वॉल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्राउंड है वो हो सकता है. जब हम लोग क्या कहते हैं कभी रात में चल रहे हैं, मान लो पीछे से फॉर एग्जाम्पल हमारे बैक से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, जो रेज है लाइट की वो सारी हमारी बॉडी से पास होकर कहाँ स्ट्राइक करती हैं, ग्राउंड पे. तो वी विल गेट आवर शेडो. तो दिस इज शेडो इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्शन. ओके, so this is all the about the projection. Now what is the difference between orthographic projection or simple projection? So when we talk about orthographic projection, let me write it. Orthographic projection. Okay, there are 2 points that has to be kept in mind. First one is that all the projectors are parallel to each other. Parallel to each. Okay, means जो भी हमने प्रोजेक्टर लाइन्स अभी यहाँ पे ड्रॉ की थी, for example these yellow color lines, these blue color lines, these are the projectors. So if these all are, first condition is ये सारी प्रोजेक्टर लाइंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए. अभी इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इन दोनों प्रोजेक्टर लाइंस के बीच की डिस्टेंस कुछ डिफरेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ डिफरेंट, सो दीज आर नॉट पैरेलल. ओके, सो ये सब किसी ना किसी एंगल पे है एक दूसरे के. एंड सेकेंड कंडीशन इज द प्रोजेक्टर should strike the plane of projection perpendicular. व्हाट, इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स, इस प्लेन, ये सरफेस, दिस सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, पीओपी. अब इस डिफरेंट डिफरेंट लाइन, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन किसी ना किसी एंगल पे स्ट्राइक कर रही है. सिमिलरली ये दिस इज सम एंगल, ठीक है. बट इन केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये सारी लाइंस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, किसी एंगल पे नहीं हो सकती. ओके, सो व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड we call that simple projection or orthographic projection. For example, this is the condition. We have taken again a surface. This is a plane of projection. Okay, this is again a object. Now difference is only that कि अभी जो हम लोगों ने प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ की थी, those were not parallel to each other. For example, इन दोनों के बीच की distance was not equal. But here in this case, all the projectors or all the projection lines are parallel to each other. दोनों के बीच की distance सेम है थ्रू आउट. ओके, तो बेसिकली कैसे हो रहा है कि इन दिस केस व्हाट वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो व्यूअर है दैट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. क्यों, क्योंकि अगर व्यूअर समवॉट नियर बाई होगा तो ऑब्वियसली बात है कि व्यूअर इज अ पॉइंट, उस पॉइंट से अगर इफ यू आर ड्रॉइंग द प्रोजेक्टर लाइंस तो इट विल बी इन डाइवर्जिंग इन नेचर. दैट्स व्हाई व्हाट वी अज्यूम कि जो व्यूअर है इन दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन केस that is situated at a or located at a infinite distance. Thus that कि जो डिफरेंट डिफरेंट और नंबर ऑफ प्रोजेक्शन लाइंस हैं ये आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है.
ओके, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल, जब ये जो भी प्रोजेक्शन लाइन है जब इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे स्ट्राइक कर रही है, तो एंगल, दिस एंगल, सिमिलरली दिस एंगल, ये एंगल, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो आपको यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट these angle are 90 degree. So all the projection lines are striking on this plane of projection at a perpendicular or perpendicularly or at an angle of 90 degree. Okay, so this combination of two conditions gives us the orthographic projection. Okay, so in simple words we can also say that it is a way of representing an 3D image into 2D with the help of different views. For example, अभी आप इस ऑब्जेक्ट, ये कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट व्यू की हेल्प से 2D में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये कैसा दिखेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट वी कैन डू, कि हम इसके फ्रंट से देख सकते हैं इसका कैसा दिख रहा है, सिमिलरली इसको टॉप से देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, सिमिलरली इसको हम साइड से देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, एंड वी कैन ड्रॉ 3 व्यूज इन 2D. दिस विल बी योर फ्रंट व्यू, सिमिलरली दिस विल बी योर टॉप व्यू, एंड दिस विल बी योर साइड व्यू. Okay, and based on these 3 views we can easily find out कि जो मेरा final object है 3D view क्या होगा. Okay, so simply what we are trying to do, we are representing our 3D object into 2D with the help of different views. Where this is your front view. Front view क्यों है, क्योंकि हम इसको सामने फ्रंट से देख रहे हैं. Similarly when we are when observer or viewer is at the top, so this will be your top view. Similarly, when observer or viewer is in the side, so this is your side view. Okay, and जब मुझे total 3D geometry चाहिए कि how this object will be look in 3D, we can join all these 3 view and we can get easily the object in 3D. Okay, so this is the basic fundamental behind the orthographic projection. Okay, now let us go towards the next topic, that is projection of points. That is the first topic of orthographic projection. Projection of points. Okay, now when we talk about projection of points, सबसे पहली बात है कि we need a plane of projection. Okay, without plane of projection we can't have any projection of point or any projection of any object. Okay, so for that we can define the plane of projection in 2 categories. First one is principal planes and second one is auxiliary planes. Okay, so plane of projection, these two can be defined in 2 categories. Principal plane and auxiliary planes. Now, principal planes further can be subdivided into 2 types of plane. First one is of horizontal plane and second one is the vertical plane. Okay. Now again here auxiliary plane again can be divided into further divided into 3 parts, out of which for now only one plane is important, that is called profile plane. Okay. Second one is your auxiliary inclined plane. And third one is your auxiliary vertical plane. Now, out of these 3, we will talk about these 2 planes in further lectures, in coming lectures. But for this lecture, we need to focus on these 3 planes. First one is your horizontal plane, second one is your vertical plane, and third one is your profile plane. Okay, so what are these planes? So let me show you what are these planes.
So this is a view of different planes. So here you can easily see this plane is your vertical plane, okay, and this plane is your horizontal plane. Now a plane which is perpendicular to both your vertical and horizontal plane, that is called profile plane. For example, if I am drawing a plane like this, okay, this plane, so it is perpendicular to both vertical plane and horizontal planes, and this plane is called profile plane. Okay, so this is my vertical plane, this is my horizontal plane. Vertical plane you can assume like your wall, horizontal plane you can assume like your ground. Profile plane is also again wall which is perpendicular to vertical plane and horizontal plane. Okay, so these three planes are mainly important for the projection of point or for this lecture. Okay, now whenever there is a body or whenever there is an object जो हमको जिसका हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, whenever we have an object for which we need projection, तो इसका प्रोजेक्शन जब मैं फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करूंगा, सो दैट फ्रंट व्यू विल कम ऑन द वर्टिकल प्लेन ऑलवेज. सिमिलरली जब आप टॉप से देखेंगे तो इसका जो टॉप व्यू है, सॉरी आई हैव ड्रॉन दिस ऑब्जेक्ट, आई शुड नॉट हैव ड्रॉन दिस ऑब्जेक्ट हियर. ओके, लेट मी ड्रॉ इट समवेयर हियर. ओके, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको अगर फ्रंट व्यू देखना है, व्यूअर इज हियर, तो फ्रंट व्यू विल बी प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन. Similarly, top view will be projected on horizontal plane and side view will be projected on profile plane. Okay, for more clarity, you can draw it here. Say, this is our vertical plane. This is horizontal plane. Okay, and third one is your profile plane. Okay, for now, I will draw only first quadrant. I will leave these other quadrants. Okay, these are the different planes. ये तीन प्लेन है जिन पे हमें फोकस करना है. दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, this is your profile plane, and this is your horizontal plane. Okay, अब for example we have an object, again I will take that same object, okay. तो अब फ्रंट व्यू के लिए आपको लोग क्या करना होगा, योर फ्रंट व्यू, दिस योर ऑब्जर्वर इज हियर और व्यूअर इज हियर, तो एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइंस पास होंगी और वो कहाँ स्ट्राइक करेंगी, वर्टिकल प्लेन पे. ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से वर्टिकल लाइंस पास होंगी, प्रोजेक्शन लाइंस, और वो स्ट्राइक करेंगी कहाँ पे, वर्टिकल प्लेन पे. ओके, एंड व्हेन जब हम इसको ज्वाइन करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स को, then we'll get the front view of the object. Okay, similarly जब in case the object the viewer is at top, so top के लिए same वही condition, again that viewer is at infinite distance, so that projection lines will pass from the different parts.
Similarly from this line, और जहां भी ये प्रोजेक्शन लाइंस विल स्ट्राइक ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इनको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, you will get the top view. Okay, so this is your front view, this is your top view, and last one is your side view. Side view के लिए your observer is at this time, this here, this place, and again you will project projection line on the side, sorry, on the profile plane. ओके, और जैसे ही आप सारे जो भी प्रोजेक्शन लाइन जहाँ प्रोफाइल में स्ट्राइक कर रही है उनको ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट द साइड व्यू. ओके, so this is your front view, this is your side view, और this is your top view. तो हमको सिंपली पता चल गया है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमें कौन सा व्यू मिल रहा है, टॉप व्यू. सिमिलरली वर्टिकल प्लेन पे वी आर गेटिंग फ्रंट व्यू, एंड प्रोफाइल प्लेन पे वी आर गेटिंग साइड व्यू. ओके, so these things are clear now. अब अभी जो कंडीशन थी, इस कंडीशन में हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है. फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको भी क्वाड्रेंट दिखाए थे इस केस में. ओके, इन दिस केस आवर ऑब्जेक्ट कैन बी इन एनी क्वाड्रेंट. इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या ऑब्जेक्ट इस थर्ड क्वाड्रेंट में रखा हो, या ऑब्जेक्ट इस सॉरी सेकंड में रखा हो, या थर्ड में हो, या फोर्थ में हो. अब क्वाड्रेंट से डेफिनेशन डिफरेंस क्या आ रहा है, द पोजीशन ऑफ व्यूअर, जो फ्रंट व्यू के लिए पोजीशन है वो हमेशा पोजीशन इस राइट हैंड साइड में है. सिमिलरली टॉप व्यू के लिए जो पोजीशन व्यूअर की है वो हमेशा टॉप पर है. ओके, तो जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मेरा ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड व्यूअर. ओके, सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, so plane of projection is in between object and viewer. Okay, similarly third quadrant same as second, and fourth quadrant same as first. Okay, अब क्या कंडीशन है कि जब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो बिकॉज आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो इन दैट केस आपको जब तक ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है तब तक आपको इसके साइड जो उसके बाद जो बिहाइंड जो ऑब्जेक्ट रखा है वो दिखेगा नहीं. तो इन दैट केस सेकंड क्वाड्रेंट के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है ये ट्रांसपेरेंट है, सो दैट कि ये जो व्यूअर है वो इस ऑब्जेक्ट को देख सके इजीली. अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, ठीक है, इफ इट इज नॉट पारदर्शी, मतलब आप आर पार नहीं देख सकते, तब आप इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. तो उस कंडीशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि जब भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट इस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू अगर आप देख रहे हैं तो उस कंडीशन में ये प्लेन क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कि सच दैट कि आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाए. Okay, so based on the position of the object we define different projection, and जो जिनका नाम इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. फॉर एग्जांपल, अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, इफ ऑब्जेक्ट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और इफ ऑब्जेक्ट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन. अब सिंपली डोंट टेक इट एज अ डेफिनेशन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. दिस इज नॉट अ डेफिनेशन. डेफिनेशन इज कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द व्यूअर, देन वी कॉल इट अ व्हाट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन. ओके, सिमिलरली second angle, third angle, fourth angle. Okay, so now let us see how we obtain different projection when the object is situated in, or when the point is situated in different quadrant. Why? Because we are talking about the position of points. So first of all we will consider first angle projection. First angle projection. ओके, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, this is your horizontal plane,
this. Okay, this is your horizontal plane. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका? योर ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. So let us say कि मेरा जो पॉइंट है वो it is situated somewhat here. This is your point. Let us say this is point A. Okay. अब point A को fix कैसे करेंगे? Point A will be fixed with the help of its distance from the vertical plane and the horizontal plane. For example, इसकी distance इस vertical plane से कुछ दे रखी है. Let us say that is 10 meter. Oh, sorry, 10 meter, 10 mm. Okay. Or similarly, its distance from the horizontal plane is 20 mm. ओके, तो जैसे ही मैं ये डिस्टेंस फिक्स कर रहा हूँ आपका पॉइंट फिक्स हो गया. ओके, नाउ जब आप इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑब्टेन करेंगे ऑन द वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हमें क्या करना है? सेम जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, प्रोजेक्शन लाइंस. वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस. तो फ्रंट व्यू के लिए आपको ऑब्जर्वर इज हियर, तो फॉर फ्रंट व्यू यू हैव टू पुट द प्रोजेक्शन. Okay, because it is a single point, so there will be a single projection line. Similarly, for top view, there will be a projection line which will strike on horizontal plane. Okay, so basically जो मुझे फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन मिल रहा है, that will also be a point. क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू will be a point only. So this will be a point and this will also be a point. Okay, now whenever we have a front view, we denote it with a small letter with prime. What do you mean? Like this was my point A. ये point A था जिसका मैंने प्रोजेक्ट किया फ्रंट व्यू में, तो स्मॉल लेटर इज A and with prime A dash. Similarly, whenever we have a top view, हम रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ इसको स्मॉल लेटर से. ओके, सो दिस इज योर A. तो अब आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने कहीं लिख दिया किसी पॉइंट को कि दिस इज A, तो यू डोंट हैव टू आस्क मी कि सर ये फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू है, बिकॉज I have written it A, so it will be a top view. Similarly, if I have written A dash, so it will be a front view of point A. Okay, so this A dash is the front view of the point A, and this A is the top view of point A. Okay, now again, what will be this distance? You can easily see, because this is the 20 and this line is perpendicular to this plane. Okay, orthographic projection hai, so this will also be 20. Similarly, what will be this distance? See, this is again for a projection line, and this will be perpendicular to HP, so this will be your 10. Okay, so यहाँ से आपको एक चीज और पता चल रही है कि whenever we are getting a front view, तो फ्रंट व्यू में आपको मिल रही है डिस्टेंस फ्रॉम HP. सी, ए पॉइंट की HP से डिस्टेंस क्या थी? 20. वो आपको फ्रंट व्यू में दिख रही है. एक पॉइंट है फ्रंट व्यू में, वो कितने ऊपर है? 20 mm. ओके, सिमिलरली जब मैं टॉप व्यू की बात करता हूँ, इन केस ऑफ टॉप व्यू वी गेट डिस्टेंस फ्रॉम BP. यहाँ पर देखिए, दिस इज योर पॉइंट A, टॉप व्यू A. अब इस कितना दूर है यहाँ से? 10, विच इज डिस्टेंस फ्रॉम BP. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, नाउ this the intersection of this vertical plane and horizontal plane, we get a line, and this line is called reference line, and we denote it with XY. Okay, this is called reference line. This intersection line is called reference line, और इस लाइन को हम डिनोट करते हैं XY लाइन से, XY से. ओके, अब दिस इज जो मैंने आपको अभी व्यू दिखाया, जो पोजीशन दिखाया, दैट इज 3D. आपको 3D में ड्रॉ नहीं करना, बिकॉज यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर शीट, ऑन योर पेपर. उसके लिए हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, वी रोटेट दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री. ओके, सो जैसे ही ये प्लेन नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है कि ये जो व्हाइट कलर का प्लेन पूरा फुल वन पीस, तो दिस प्लेन विल गो अप. ओके, वर्टिकल प्लेन जैसा है वैसा ही रहेगा. तो अब कंडीशन कैसी हो जाएगी अगर मैं इसके बाद सेकंड स्टेप में ये प्लेन ड्रॉ करना चाहूँ? तो इन सेकंड स्टेप कंडीशन विल बी समथिंग लाइक दिस.
or let us see. This is the condition. और ये जो इंटरसेक्शन लाइन थी ये आपको ऐसे दिख रही है अभी, दिस विल बी योर इंटरसेक्शन लाइन, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। ओके, सिंपली हमने क्या किया, क्योंकि हमको 2D में ड्रॉ करना है, तो वी जस्ट रोटेटेड दिस एच पी, दिस इज योर एच पी, दिस इज योर वी पी, तो वी जस्ट रोटेटेड दिस एच पी विद 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो हमने 90 डिग्री इसको रोटेट कर दिया सच दैट कि दोनों व्यू क्या आ जाए, एक प्लेन में आ जाए। ओके, सो नाउ अगर मैं ये सेम इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना चाहूँ, तो व्हाट विल बी द टॉप व्यू? टॉप व्यू विल बी अ पॉइंट which is denoted by a dash, and distance of that point from the xy line will be what? 20. Okay, similarly, what will be my front view? For front view, first of all, it will be just below this line. क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पर जब आप इसको नीचे करोगे तो ये दोनों पॉइंट्स कैसे आएंगे, एक दूसरे के एक ही पोजीशन लाइन पर कोइंसाइड कर रहे होंगे। ओके, so draw a line for that, not coinciding the point. Okay, now okay, तो ये था आपका फ्रंट व्यू। जो आपका सॉरी जो आपका टॉप व्यू होगा वो भी इसी लाइन पर होगा कहीं नीचे, बट कितना डिस्टेंस नीचे होगा वो आपको दिख रहा है कि जैसे ही आपने इस पॉइंट को नीचे, इस प्लेन को नीचे किया, तो डिस्टेंस विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, so there will be a point which will denoted by a, this is your top view, and this distance will be 10. Okay, so this is the projection of the point a in first angle. So basically, in short form, I can also write in first angle projection, मेरा जो फ्रंट व्यू है दैट इज अबव द एक्स वाई लाइन, ये आपको दिख रहा है, दिस इज एक्स वाई लाइन एंड अबव द एक्स वाई लाइन इज फ्रंट व्यू। सिमिलरली योर टॉप व्यू इज बिलो द एक्स वाई लाइन। ओके, दिस इज द कंडीशन व्हेन पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपली हमने कुछ नहीं किया है, पहले प्रोजेक्शन लिया पॉइंट का, उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करा दिया, दैट्स इट। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। Okay, once again I will draw the horizontal plane and vertical plane. But now I will draw something this side such that कि आपको second quadrant easily visible हो। मैंने इसको रोटेट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। ओके, सिंपली जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट एंगल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, मैंने इसको ऐसे रोटेट करा दिया, दैट्स इट। ठीक है, नाउ पॉइंट इज इन दिस क्वाड्रेंट। ओके, लेट अस से पॉइंट इज समवेयर हियर, sorry, yeah, somewhere here. Again, it is at a distance from VP and it is at a distance from HP. Okay, but keep that in mind कि व्यूअर अभी भी इसी डायरेक्शन में यहीं पर है, तो पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या हो जाएगा, बिहाइंड द VP एंड अबव द HP। इस कंडीशन में क्या था, पॉइंट इन फ्रंट ऑफ VP अबव द HP, तो कीप दैट इन माइंड। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है वो चेंज नहीं होगी पॉइंट की या ऑब्जेक्ट की पोजीशन से। पॉइंट अगर फर्स्ट एंगल में है, सेकंड एंगल में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट है, बट जो व्यूअर है दैट विल बी ऑलवेज हियर in for front view. Similarly for top view, viewer will always be here. Okay, so viewer is here. Again, for top view, for front view, what we have to do, we have to projection, we have to put a projection line. Okay, that will come from this viewer. Similarly for top view,
You have to put a projection line that will come from the viewer at the top from here. Okay, जैसे ही आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, this projection line, whenever this projection line is striking on the vertical plane, we will get a point that will be your front view. Similarly, whenever this vertical projection line will strike horizontal plane, this will be your top view. Okay, let us say this point is B. So front view again क्या होगा? It will be B with prime B dash. Similarly, this will be your B. Okay, तो ये आपको टॉप व्यू मिल गया सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में, ये आपको मिल गया फ्रंट व्यू. अगेन let me show you the distances. Let us say this is your again 10, this is 20. Okay, so this distance will be what? Now you can easily tell me. क्यों? क्योंकि this is perpendicular. Okay, so see this distance will be same as 20. Similarly, this distance will be same as 10. Again, in front view we are getting distance from the horizontal plane, in top view we are getting distance from the vertical plane. Okay, so ये मेरा क्या मिल गया? Projection. This we have achieved the projection, but now again we have to draw it in on sheet. Okay, 2D. तो फॉर दैट क्या हमने क्या किया था लास्ट केस में? इस वाले प्लेन को नीचे रोटेट किया था. ऑब्वियसली बात है कि जब हम इस प्लेन को नीचे 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो दिस प्लेन विल गो अप. ओके, तो सेम कंडीशन वही है. हम जब इस प्लेन को, दिस इज योर प्लेन एंड इसको नीचे में रोटेट कर रहा हूं तो दिस विल गो अप. तो क्या कंडीशन आएगी अब? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में क्या हुआ था कि वर्टिकल प्लेन वहीं था, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे चला गया था. बट क्या है सेकंड एंगल के केस में क्या हो रहा है कि वर्टिकल प्लेन तो वहां पे है ही, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ऊपर ही आ जा रहा है. ओके, तो क्या कंडीशन होगी नाउ? अब आपको कंडीशन ये दिखेगी कि दिस इज योर वर्टिकल प्लेन एंड यहीं पर आपका, सॉरी, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन. दोनों प्लेन प्लेन कोइंसाइड कर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो दोनों व्यू होंगे वो, दिस इज योर रेफरेंस लाइन. अगेन लेट मी टेल यू वंस अगेन, दिस इज द इंटरसेक्शन रेफरेंस लाइन. ओके, एक्स वाई. ठीक है, तो जो लाइन मिलेगी दिस इज योर रेफरेंस लाइन, दिस इज एक्स वाई. ओके, सो दोनों व्यू जो मिल रहे हैं आपको, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, क्योंकि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी रोटेट होके ऊपर चला गया, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? रेफरेंस लाइन से ऊपर. ओके, सो लेट मी ड्रॉ फर्स्ट फ्रंट व्यू. आप कोई भी व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फ्रंट व्यू ही ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट व्यू है, तो ऑब्वियसली बात है कि फ्रंट व्यू कितना ऊपर बनेगा? एक्स वाई से कितना? 20. ओके, ये हमें यहाँ से दिख रहा है क्योंकि दिस इज योर एक्स वाई. ओके, सो दिस इज योर फ्रंट व्यू बी डैश. नाउ टॉप व्यू के लिए क्या करेंगे हम? प्रोजेक्शन लाइन, जो भी हमने लास्ट केस में ड्रॉ किया था कि जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू होंगे दोनों क्या होंगे? एक ही लाइन पर होंगे. ओके, और क्यों? बिकॉज अगर मैं यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये जैसे ही आपने इसको रोटेट किया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? कॉइंसाइड हो जाएंगी. ओके, तो एक ही लाइन पर इसका टॉप व्यू भी इसी लाइन पर होगा कहीं, और वो कहाँ पर होगा? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करा दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये व्यू भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ कहीं वो कितने डिस्टेंस पर होगा? 10 mm. ओके, तो 10 mm एक्स वाई लाइन से ऊपर आपको मिलेगा इसका टॉप व्यू. तो हेयर जैसे दिस इज 10. ओके, so this will be your top view. Okay, simple. What we are getting in case of second angle projection, मेरा जो front view है that is also coming above the xy line, and मेरे जो top view है that is also coming on the above the xy line. Okay, दोनों व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, दोनों xy लाइन के ऊपर coincide कर रहे हैं. Okay, next is your third angle projection. Now third angle, in case of third angle projection, again the object is in third quadrant. So again let me draw the quadrant.
ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पॉइंट विल बी समवेयर हियर। ओके, अगेन point will be the distance from VP and at a distance from HP। ओके, ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू के लिए यहीं पर होगा, टॉप व्यू के लिए ऑब्जर्वर यहीं पर होगा। ठीक है, अब ध्यान कीप दैट इन माइंड कि जैसे ही आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू के लिए आपको ये प्लेन जो वर्टिकल प्लेन है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आप अदरवाइज आप इस प्लेन के अपोजिट बिहाइंड नहीं देख सकते। सिमिलरली टॉप व्यू के लिए भी ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, अदरवाइज आप इस पॉइंट को देख नहीं पाएंगे ऊपर से। Okay, so in third angle projection case, both the horizontal plane and vertical plane should be transparent. Okay, similarly in case of second angle, only vertical plane should be transparent. क्योंकि क्या है, horizontal टॉप व्यू आपको इजीली दिख जा रहा है क्योंकि वर्टिकल प्लेन से ऊपर है, एज द सॉरी अबव द एचपी पॉइंट है। बट इन केस ऑफ थर्ड एंगल, पॉइंट इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, तो आपको दोनों प्लेन क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ओके, नाउ वंस अगेन फॉर प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू you have to put projection line. So this is your projection line in front view, and similarly this is your projection line in top view. Okay, तो जहाँ पे भी प्रोजेक्शन लाइन स्ट्राइक करेगी प्लेन को, दैट विल बी योर फ्रंट व्यू एंड top view. So this is your front view or this is your top view. Okay, let us say this point is C, so this is front view C dash and this is C. Okay, अब अगेन जब मैं दोनों की डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी? दिस डिस्टेंस विल बी सेम एज दिस, लेट अस से अगेन दिस इज 20 एंड 10, so this will be 20, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हमने थोड़ा गलत शो कर दिया है, we correct it only this point. Okay, so this is 10, so again this distance will be again 10. ओके, अब फिर से अगेन वही हम लोगों को क्या करना है? दिस इज योर एक्स वाई लाइन इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको नीचे को ऊपर। ओके, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पर पॉइंट है, सॉरी लेट मी टेक अनदर कलर, दिस इज योर पॉइंट। ओके, जब आप इसको फ्रंट व्यू में देखेंगे तो फ्रंट व्यू विल कम हेयर, दिस प्रोजेक्ट प्लेन, टॉप व्यू विल कम समवेयर हियर ऑन दिस प्लेन। ओके, और आप इस प्लेन को ऊपर ले जा रहे हैं और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये दिस विल बी गो डाउन, दिस विल गो अप। ओके, तो फ्रंट व्यू कहाँ आ रहा है? दिस इज योर रेफरेंस लाइन। ओके, सो ऑब्वियसली योर फ्रंट व्यू, दिस इज योर लेट अस से सी डैश, दिस इज योर सी। जैसे ही इसको आपने रोटेट किया ये व्यू यहाँ बनेगा आके, यहाँ पर ये प्लेन ब्लैक प्लेन, तो जो आपका टॉप व्यू आएगा दैट विल बी अबव द एक्स वाई लाइन, डैश विल नॉट बी देयर। ओके, एंड जो फ्रंट व्यू आएगा वो क्या होगा? बिलो द एक्स वाई लाइन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा? जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा, यू विल गेट this condition. This is your horizontal plane and below will be your vertical plane, और जो इंटरसेक्शन लाइन है दोनों की दैट इज योर एक्स वाई लाइन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर गया, दैट मीन्स टॉप व्यू आपका ऊपर जा रहा है। लेट अस से दिस इज योर टॉप व्यू, दिस इज सी। कितना डिस्टेंस पर होगा ये आपको इजीली पता है, क्योंकि टॉप व्यू में मुझे कौन सी डिस्टेंस मिलती है? फ्रंट वर्टिकल प्लेन से। तो टॉप व्यू ये है, कितना डिस्टेंस है ये? 20, दिस इज योर 20। अगेन फ्रंट व्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी होगी, तो दिस विल बी योर प्रोजेक्शन लाइन। नाउ यहाँ से मुझे पता है कि फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे है, कितना नीचे है? 10 mm। तो 10 mm एक्स वाई लाइन के नीचे मैं एक पॉइंट कंसिडर करूंगा, दिस इज योर 10, so this will be your front view। Okay, so in this case, in third angle projection case, your top view is above the xy line and your front view is below the xy line। Okay, and last is your fourth angle projection। Okay, ये projection आप, I will tell only
द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करिए, ट्राई इट, देन check whether you are able to get the correct answer or not. Okay, this is your vertical plane, this is your horizontal plane. Okay, now object is in fourth quadrant. Okay, so object की इस vertical plane से, sorry, horizontal plane से some distance, it is let us say 20, and similarly it is somewhat in front of VP, that is 30. Okay, जैसे ही आप फिर से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट व्यू यहाँ पर आएगा, इसकी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट टॉप व्यूज का यहाँ पर आएगा, बट again you are rotating this horizontal plane like clockwise. Okay, तो vertical plane तो already था xy लाइन के नीचे, जो vertical projection, sorry vertical plane नहीं, जो front view आ रहा था that was already in below the xy line, बट आपने जैसे ही horizontal plane को भी rotate किया तो ये भी top view भी xy line के नीचे आ गया. Okay, so the final view will be something like this. फ्रंट व्यू के लिए जो वर्टिकल प्लेन है that is here also, and your horizontal plane is also here. Okay, and this is your xy line के ऊपर whatever that वर्टिकल प्लेन, एंड देन अगेन आपने रोटेट किया था हॉरिजॉन्टल. ओके, बट दोनों व्यू जो आपके आ रहे हैं दैट इज बिलो दी एक्स वाई लाइन. ओके, so this will be your, let us say, front view, let us, this is point D, so this is D dash. D dash की डिस्टेंस क्या होगी फ्रंट व्यू में, डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन से, दैट इज 20. अगेन टॉप व्यू आपको फाइंड आउट करना है तो यू विल, सॉरी, यू विल ड्रॉ प्रोजेक्शन लाइन. प्रोजेक्शन लाइन पर टॉप व्यू होगा मेरा कहीं. ओके, वो कितने डिस्टेंस पर होगा, टॉप व्यू इज ये, दिस इज टॉप व्यू, सो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है टॉप व्यू की, अगेन वही 30. ओके, तो 30 mm नीचे you will have top view. 50, this is d dash, this is 20, this is 30. Okay, so in fourth angle projection what we are getting, the fourth angle projection के केस में आपका top view and front view both we are getting on below the xy line. Okay, I hope ये जो चारों एंगल प्रोजेक्शन है ये आपको क्लियर होंगे. तो नाउ वी लेट मी समराइज ऑल दीज. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के केस में क्या हुआ कि फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर बन रहा था, टॉप व्यू नीचे बन रहा था. सेकंड एंगल के केस में दोनों व्यू रेफरेंस लाइन से ऊपर बन रहे हैं. थर्ड एंगल के केस में टॉप व्यू इज above the reference line and front view is below the reference line. Okay, just opposite the first angle projection. And fourth angle, top view, front view both are the below the reference line. Okay, तो सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल के केस में क्या हो रहा है कि रेफरेंस लाइन के एक ही साइड में दोनों व्यू बन रहे हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका टॉप व्यू भी एक इसी, यही इसी क्या कहते हैं एक्स वाई के एक ही साइड, लेट से फोर्थ एंगल में नीचे बन रहा है, और इसका फ्रंट व्यू भी यही बन रहा है. क्या होगा कि जो आपको विजुअलाइजेशन है वो दैट विल नॉट बी बेटर. ओके, क्योंकि आप फ्रंट व्यू भी यही बना रहे हैं, टॉप व्यू भी यही बना रहे हैं, तो दोनों की जो विजुअलाइजेशन है सेपरेटली दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, ऑन द अदर हैंड इसी के कंट्रेरी अगर आप इसी को फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो क्या होगा, एक व्यू ऊपर बन रहा है और एक व्यू नीचे बन रहा है, तो दैट विल बी वेरी क्लियरली विजिबल, और जो विजुअलाइजेशन है that will be very clear as compared to fourth angle and second angle projection. Okay, so that is the reason कि हम लोग मेन जो ड्राइंग करते हैं that we use first angle or third angle projection only. Okay, now for example in case of first angle, this is your object, this is your projection. Okay, sorry, plane of projection, and this is your viewer. Okay, in second angle projection, this is your object, this is your plane of projection, and this is your viewer. ओके, तो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ये दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर कैमरा. जो हमारा फोटोग्राफिक कैमरा आते थे रील वाले, में क्या होता था, दिस सम पर्सन और समथिंग इज
standing, you have a camera, okay, and the viewer is this side. कैमरा में एक रील है, दैट इज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ पे आपको इस क्या कहते हैं पर्सन की या ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोजेक्ट करना है. तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर. Okay, so this is the same example of second angle projection. Similarly, when we talk about shadow के केस में क्या है कि object is this, at this side there is a light source, that is observer, and you will get the shadow at the different side. Okay, so this is the example of your first angle projection. Okay, so this completes your the projection of point in first angle, second angle, second angle, third angle, and fourth angle. Okay, now in next lecture we will practice some question based on these concepts, and we will also see how we can draw the side view of this point. Okay, that we'll see in the next lecture. Okay, thank you.